But actually, when we go to a police station and tell that my wife has beaten me physically or mentally, it's very rare that police will register an FIR against your wife or against a family member. So law is there. Think about listening to us. They not even listen to us. Yes, yes, yeah. So who they are, actually who they are, they are also a human being. They are also from like one of us. And when again we go to a court, judge or like sitting there, definitely they will not listen. Who actually they are also human being. So we have to change. It is not a law have to change or men commission should be there. We have to change. We have to think that हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि हमें भी समझना होगा कि हमारे घर में भी बाप भाई बेटा दामाद है और ये कहीं से नहीं आते हैं. आज आपके साथ हुआ, कल मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है. एंड इट इज हैपनिंग. ये तो नहीं है कि वो पुलिस वाला आज है तो कल के उसके साथ नहीं होगा. वो आज जज है तो उसके घर में भी कोई बेटा होगा, उसके घर में भी कोई हस्बैंड होगा, उसके घर में भी कोई फादर होगा, उसके घर में भी कोई सन इन लॉ होगा. एंड इट कैन हैपन विथ एनीवन. एंड इट इज हैपनिंग. ऐसा नहीं है आईएएस नहीं मरते हैं, बिकॉज वी हैव सीन इवन आईएएस आईपीएस इवन इन जुडिशरी सिस्टम मेनी जजेस अगेंस्ट whom their wife has filed a complaint and उनको पता है कि भैया मेरा कुछ होना नहीं वाला. उनके पास भी दो ही रास्ता है, वाइफ की सारी डिमांड को मान लो या फिर मतलब कि उसका जो भी अनलॉफुल डिमांड है दे आर डूइंग दैट थिंग. तो हमें चेंज होना होगा. सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है. एंड अगर आप ही फॉर ह्यूमन बीइंग लाइक थिंक, अगर आपको कभी रास्ते में किसी मैन ने हेल्प मांगा है, कभी आपने हेल्प किया है नहीं किया, एंड द सेम थिंग व्हेन एनी लेडी आस्क फॉर योर हेल्प यू हेल्प दैट लेडी. तो हमें चेंज होना होगा. इट इज नॉट अबाउट लॉ हैज टू चेंज. लॉ तो अपनी जगह सही है. Any straight women stands in roads are not help, but for men are help, sir. This happened me after my case, sir. I came to know this and afterwards. You know, as what Atul happened, the same thing for me also happened when I was standing APC in court. My father, I lost my father because of this. Because of this. I told that there's nobody supporting me. The judge was like laughing at me, sir. Yeah, definitely, I totally agree. Even now, we have seen a cases like in many cases now, wife do a second marriage also. Wife even do a second marriage without even getting a divorce. Still, court doesn't do anything. And if the same thing that person do, that without getting a divorce, he do a second marriage, court will punish them under a bigamy and all that thing. And so that is the thing now. Who is the judge? Actually, we have to think whether it's a man or a woman. In most of the cases, we have seen judge is a man or a woman. We have to change, I think. And there are many good judges also, many good police also, many good people also, those who help. We are also a married person. We are also having a daughter. Frankly speaking, no judges, no police, and no legal lawyer will help, sir. Yeah, so that is so tomorrow they will also become a victim. That is the system. If today you are helping any culprit, tomorrow you will also get a victimized like that. That is the system. Tomorrow you are a judge. Tomorrow next generation you will also face. That is the karma. What we have seen in so many years. That if today you don't raise a voice against any wrong thing, tomorrow the same thing will happen with you or with your coming generation. Because myself, I am also having a 2 daughters, I am also having a wife. But I know, because people ask me, why you are helping a man? My simple answer is that there are a lot of people to help a woman. There are a lot of people. But to help a man, there are hardly any person who can stand, okay, this person is right. False rape cases has been registered, false dowry case has been registered. They are very like a small people, those who help actually men. And men are also human beings. People say, यार suicide क्यों कर लिया? अरे यार, he is also human being. उसको भी तो पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है ना. इट इज नॉट लाइक दैट कि भैया मेंस को तो कुछ दर्द ही नहीं होता. एंड फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, यू नो द मैन इंटरनेशनल डे कब होता है? November 7th something. No, wrong. Even like that is the problem, na. If I ask even from a small child ki when Women International Day, everyone knows ki 8th of March. But when is the International Men's Day? That is the 19th of November. Hardly any people know. Okay. Yeah, that is the problem. Like because देखो मेरे पास तो अभी खुद मतलब मेरे अगर फैमिली में बोलो तो मैं एक लड़का. My wife is also female. My 2 daughters are also female. But the problem is that na,
कि आई एम नॉट biased against any gender. My problem is that कि what we have seen and that the men are getting victimized. That is just not because of law. That is because people want to extort the money from the men. You have to understand, because people know women can't give that much and women also don't pay that much price. But men are like having that mentality कि यार प्रॉब्लम खत्म हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वाइफ हो या पुलिस हो, उसको पैसे देते हैं. एंड दैट्स व्हाई पुलिस ऑलवेज रजिस्टर FIR अगेंस्ट मैन, because they know if we register FIR against man, we can easily extort the money. But in another case, if they register FIR against women, it's very difficult to extort the money from the women. That is the problem. So actually the problem is with us, that we are that much greedy for the money that we don't care who is the right or who is wrong. Myself, lawyer, advocate sitting in Delhi, and we are having a perception ki Bangalore is a South Indian city, very honest people are there, but even I am dealing with cyber fraud cases, and I am having a data that all over India, for example, for certain cases in Delhi, if police ask for a 15,000, for the same case in Bangalore, there are total 8 districts, north, west, south. Every police station asks around 1 lakh, 2 lakh. Even for a registering an FIR in Bangalore, if you go to any police station, especially in family cases, they will ask you 1 lakh, 2 lakh, 50,000. That is the case. The problem is with us. Laws is there. What I have to, because I have done a lot of researches. In a day now, I am listening how many? 30, 40 cases, whole day, night. Even I am getting calls from NRIs also. They are also victimized. I have done 3-4 years in this. And at the last, what I find, कि जब तक इंसान नहीं बदलेगा, nothing can change. हम लोग पैसे के इतने लालची हो गए हैं. Lawyers are also, 90% advocates know कि इसमें होना कुछ नहीं है, but they just for making a money, they do all this. ये multiple cases file करो, multiple cases मिलेगा. Judges also know that, and they are just to earn money. You have seen that person has given a confession कि judges also having their share of 5 lakh or 10 lakh or whatever it is. So we have to change now, because individually, for example, even if you travel through bus or any public transport or any office or any public places, if you find 2 persons are fighting, one is male, another is female, in most of the cases, you are going to support to that lady. Yes. Even with your family members, for example, you are also with your wife or even with your mother, I say, or with your sister, you are going to support that lady. Oh, bichari, arey yaar, isko to maar diya. Physically she is weak, and financially she is also weak. So we give a sympathy to that lady so that we think, oh, we are very great work we are doing. But that is not a thing now. If you talk about a Ramayana, complete Ramayana कहाँ से start हुआ भैया, वो उसका लक्ष्मण ने नाक काटा and all that thing. तो यार लेडी का मतलब नहीं है. What I think, अगर ऐसा होता कि लेडी अगर सही होती तो जेल ही नहीं बनता. ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों के लिए जेल नहीं है, लड़कियों के लिए पुलिस नहीं है. तो that means कि girls can also commit crime, and they are also a culprit, and they are committing crime. They are involved in so many crimes. So it is not about man or a woman. It is about that who is right or wrong. क्योंकि अपने भी घर में वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोसाइटी ना. अपना भी तो कि अगर हम कहते हैं कि लड़कियां गलत होती हैं यार, तो वी आर ऑल्सो सेइंग कि माई मदर इज ऑल्सो रॉन्ग, माई डॉटर इज ऑल्सो रॉन्ग, माई वाइफ इज ऑल्सो रॉन्ग, माई सिस्टर इज ऑल्सो रॉन्ग. तो ऐसा तो वी कांट से ना. So solitary, what I did, because from my individual level, I always raise a voice. My wife also said, अरे यार तुम लड़कों के अगेंस्ट हो, लड़कियों के ये हो. मैंने कहा देखो मेरी तो खुद की 2 बेटियां, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ. बट अगर गलत हो रहा है ना तो वो 2 मिनट में पता चल जाता है मेरे को कि एक्चुअली इसमें लड़के के साथ प्रॉब्लम है, लड़की के साथ प्रॉब्लम है. एंड आई नो कि ये लड़का सही है. अब लड़के के साथ लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लड़का इज अर्निंग. It's very rare. If I again ask you a question, many people know कि wife can claim a maintenance, but there are very few people knows कि even a husband can also claim a maintenance. But actually problem is again with our judicial system. For example, your wife is working, your wife is doing any government job, XYZ, and you are just a common man, just doing any rough XYZ work.
and your wife is earning 1 lakh, and for example you are earning just 20,000. In that situation you can also claim for a maintenance, but it's very hardly we have seen कि कोई lawyer suggest करेगा यार तू maintenance file कर. Again even he suggest you, अरे यार मैं मैन होकर अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांगूंगा. एंड इवन इफ यू फाइल, जज विल से अरे तुम मतलब हस्बैंड हो के वाइफ से मेंटेनेंस मांग रहे हो. अंडर हिंदू मैरिज एक्ट देयर इज अ सेक्शन 24 दैट सेज कि एनीवन कैन क्लेम फॉर अ मेंटेनेंस हूएवर इन नीड ऑफ दैट. बट दैट इज द प्रॉब्लम ना. प्रॉब्लम इज इन आवर माइंडसेट. एंड एक्चुअली व्हाट देखो हमारी सोसाइटी में इट इज प्रॉब्लम मेनली इन इंडिया. इवन इफ यू गो टू एनी वेस्टर्न कंट्रीज, for them they know men women secondary thing. Firstly we know you are a human being and we treat you like a human being. But in our country, अरे यार लड़की है मतलब we give that much respect to them ना कि we think कि they are God and men are always like a culprit. तो प्रॉब्लम देखो ये मेरे को जो है लगता है कि हमें फैमिली में, सोसाइटी में, पब्लिकली इस चीज को समझना पड़ेगा. एंड जब ये माइंडसेट दूर होगा ना तो क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट होगा. हम जब भी पुलिस स्टेशन जाएंगे, हमें अगर किसी ने मारा है, वो लेडी है या मैन है, पुलिस को इससे मतलब नहीं होना चाहिए. अरे इस बंदे को चोट लगी है, इसको दिख रहा है, इसके पास एविडेंस है तो केस रजिस्टर्ड हो. हम ये सोच के केस रजिस्टर्ड नहीं करेंगे कि लड़की ने मारा है इसलिए हम केस रजिस्टर्ड नहीं करेंगे. तो ये माइंडसेट तब खत्म होगा जब वो बैठा हुआ जो इंसान है, पुलिस हो, जज हो, लॉयर हो या फिर कोई भी हो, जब हमारा माइंडसेट चेंज होगा. क्योंकि इट गोज, हमें किसने सिखाया था बचपन से कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो एंड ऑल दैट थिंग करो. क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में था, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, ऑनलाइन देखा. तो ये चेंज होना पड़ेगा. एंड ये माइंडसेट है. इवन इफ यू डोंट चेंज योर माइंडसेट ना, तो वो बंदा मान लो फॉर एग्जाम्पल tomorrow you become like a police people or you become a judge, what you will do? If you don't change your mindset, तो आपको तो ये पता है कि लड़की है यार, इसको तो मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए, अदरवाइज ये कहाँ से अपनी लाइफ को या बच्चे को ब्रिंग अप करेगी. तो हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए. अब कुछ जजेस के माइंडसेट चेंज है, लाइक वी हैव सीन कई जजेस का होता है कि भैया तुमको मतलब फॉर रोटी कपड़ा मकान, फॉर दैट ओनली वी विल गिव यू मेंटेनेंस. अगर आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, लग्जरी वे में रहना है, खुद कमाओ. इट डजेंट मैटर कि आपका वाइफ हस्बैंड 1 करोड़ रुपया अर्न कर रहा है तो आपको उसका 50 लाख रुपीज चाहिए. अरे तुमको 50 लाख क्यों मिलेगा? हस्बैंड चाहे कितना भी कमाए, यू जस्ट गेट अ मिनिमम अमाउंट जो कि फॉर योर लाइवलीहुड दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज जस्ट 15,000. अगर आपको लग्जरी लाइफ जीना है तो आप अपने मतलब खुद कमाओ. आप किसी से क्लेम कैसे कर सकते हो? तो दैट इज द थिंग वी हैव टू चेंज. हमारे लॉ में तो कहीं नहीं लिखा कि 50% शेयर शुड बी गिवन टू वाइफ, 50% लाइक मेंटेनेंस शुड बी गिवन टू वाइफ फ्रॉम द अर्निंग ऑफ द हस्बैंड. वी हैव टू चेंज. लॉ तो देखो सही है. एंड अभी आप कैंडल मार्च कर रहे हो अगेंस्ट होम, किसको चेंज करने के लिए? आप पुलिस पे प्रेशर डालोगे, जुडिशरी पे प्रेशर डालोगे, वो उससे क्या होगा? जब तक वो बैठा हुआ इंसान सोसाइटी वाइज चेंज नहीं होगा. इन अदर कंट्रीज आपने कभी बहुत रेयर सुना होगा कि मेन को मतलब इस तरीके से विक्टिमाइज हो रहा है. बट इन इंडिया वी आर सो मच मतलब कि हम लोग रिलीजियस ट्रेडिशनल वैल्यूज इतना ज्यादा है कि मतलब मैं भी मेंस के लिए इतना बोलता हूँ. बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट ना कि जो हर्ट के अंदर क्या है कि अगर मेरे को लगे कि एक लड़की लड़का है तो मैं सिंपैथी लड़की को दूंगा. दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर माइंडसेट. तो ये तो बहुत ही कहते हैं डीप रूट एक माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हमें एक सिंपैथी आ जाता है. इवन आई ऑल्सो सिट इन अ पुलिस स्टेशन ना, तो लड़का आएगा तो मैं उसको डांट के शायद से भगा दूं, बट लड़की रोती हुई आएगी एकदम बिल्कुल उस तरीके से बच्चे को लेकर गोद में, तो मेरे को नहीं भी चाहते हुए FIR रजिस्टर करना पड़ जाएगा. वो वाली बात हो जाती है. या तो दैट इज द प्रॉब्लम. वी हैव टू चेंज अ माइंडसेट. लड़का वही रोते हुए भी आए, अरे लड़का रो रहा है, ड्रामा कर रहा है, ये तो भैया एक्टिंग कर रहा है, लगता है ये मर्द ही नहीं है, ना मर्द है, मतलब हिजड़ा है. लाइक दैट पीपल स्टार्ट सेइंग, अरे लड़के होके रोते हो? हमें तो ये ब्रिंगिंग कहाँ से मिली? घर से मिली. फॉर एग्जाम्पल अरे लड़का है, तुमको तो एकदम मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए. बट यार कैसे कैसे मतलब इंसान क्यों नहीं रोएगा? इंसान है ना. लड़का लड़की होता क्या, उसके अंदर भी वही इमोशंस है, वही थॉट है, वही फीलिंग है. बस एक मेल पार्ट फीमेल पार्ट चेंज हो जाने से उसका पूरा वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाता है.
पीपल आर डूइंग इवन लाइक जेंडर चेंज भी लोग कर रहे हैं, अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं, एंड साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल, बट वी कांट चेंज द इमोशंस ना, कि लड़कियों को यही इमोशंस आएंगे, लड़कों को यही इमोशंस आएंगे। अरे लड़कियां भी सुसाइड कमिट करती है, लड़के भी करते हैं। लड़के तो मैंने वो अभी हम लोगों ने तो इतने पास से देखा है, इवन IAS ऑफिसर, वो बंदा रेलवे ट्रैक के नीचे आके, वो मतलब कहीं बिहार बक्सर का था, गाजियाबाद नियर बाय दिल्ली, he go there on a railway track, he commit a suicide being an IAS officer, and people will say अरे ये तो साइकोलॉजिकली वीक था, ये IAS कैसे बन गया, हाउ यू बिकम एन IAS। प्रॉब्लम तो यार वो बंदा इतना डिप्रेशन में चले जाता है, जब उसको एक IAS है था, उसके पास पैसा था, पावर था, अप्रोच था, फिर भी ही कमिट सुसाइड। व्हाई? बिकॉज again being a Indian people na, we are so much attached with our family member. For example, if someone separate you from your own child na, you think yaar everything is finished in my life. So we are so much emotionally attached. Foreign countries mein doing a second marriage is a very normal thing, but in Indians value अरे यार second marriage, अरे बच्चे को तुम ही देखोगे, being a father तो who will look after? It is your duty to look after your child and do each and everything. And we are obviously emotionally so much attached कि हम बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। We can give 1 crore alimony, we can sell everything, we can work whole day and night. तो that is the problem what I think ना, इमोशनली हमारे अंदर है प्रॉब्लम, कि हम लोग ना माइंडसेट इतना वो हो गया है कि हम लोग इमोशनली ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं। क्योंकि मैंने तो रिलेटेड टू दिस मैटर ना, आई हैव टॉक टू इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लाइक इन पोलैंड, अफ्रीका, लाइक सो मेनी आउटसाइड पीपल्स ऑल्सो, दे ऑल्सो टेल मी द सेम थिंग, सर द प्रॉब्लम इज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया. The problem is not in the law, because the law which we are following, that is the in England also, because we have mostly borrowed the everything law that is from England, given by England people. But the problem is in the mindset, because we are so much like कि लड़की है बोल के पुलिस कोर्ट क्या होता है, मेरे को तो मतलब ठीक है, आई एम इन दिस प्रोफेशन, सोसाइटी में भी तो वही प्रॉब्लम है। सोसाइटी में भी अगर लड़की मैंने बताया ना आपको, सोसाइटी में भी तो वही प्रॉब्लम है। लड़की को हर कोई सपोर्ट करने को खड़ा हो जाएगा, और लड़के को भैया चाटे मारने के लिए हर कोई खड़ा हो जाएगा। कौन सपोर्ट करता है यार? तुम कोर्ट तो छोड़ दो, पुलिस भी स्टेशन भी छोड़ दो, सोसाइटी की बात करो ना। हम तो आज सोसाइटी की बात करेंगे। सोसाइटी में होगा तभी तो पुलिस स्टेशन, कोर्ट में या कहीं भी दिखेगा। सोसाइटी में अगर लड़ाई होता है तो लड़के को पूरी पब्लिक पीटने को तैयार है, लड़की को कोई हाथ लगाने तक को तैयार नहीं है। तो प्रॉब्लम तो हमारे अंदर ही है। तो वी हैव, देखो मैंने ये चीजें इतना आपको इसलिए बताया कि सो यू कैन शेयर, एंड देन पीपल विल कम विद देयर थॉट दैट एक्चुअली वी हैव टू चेंज इनसाइड। और हमें आने वाली जनरेशन को चेंज करना होगा। जब ये चेंजेस आएंगे ना, तभी ये प्रॉब्लम खत्म होगा। बिकॉज मिसयूज ऑफ लॉ वो तो हर एक जगह है। एवरीवन मिसयूज लाइक देयर पावर, लॉ और वट एवर पोजिशन दे आर इन। कई कहेगा यार तुम मैन होने का फायदा उठा रहे हो, हम लोग कुछ लोग कहेंगे लड़की होने का फायदा उठा रहे हो। एवरीवन टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज इनसाइड आवर माइंड। व्हाट आई थिंक, वी थिंक यार लड़कियां कमजोर होती है, वी हैव टू सपोर्ट। वी थिंक ना दैट इफ वी सपोर्ट अ गर्ल वी आर गोइंग टू गेट एनीथिंग लाइक अ ब्लेसिंग बाय द गॉड। पूछिएगा, विचारिएगा और फिर नीचे हमें कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि लोगों तक ये मैसेज जाए और क्लैरिटी ऑफ थॉट आए और बदलाव आए।